Good morning and Jai Hind students. Today I am going to teach lesson number 1, that is place value. Right? So be ready, understand everything, and whatever questions I will be giving you that you need to solve in your note. So are you ready for lesson number 1, place value? Right? Start. I'm sharing the screen. All of you just concentrate there. Alright. Now you can see the screen. So our topic is lesson number 1, place value. First of all, when we study about place value, सबसे important होता है place value chart. Now, what is place value chart? In place value chart, we can see this places. You can see here is the place value. Let me color, that is black. Now understand something which is very important. These are what? Places. ये क्या है? Places. Ones, tens, hundred, thousand. These are what? Places. Now what is this? ये जो numbers लिखे हैं, what is that? Place value. ये क्या है? Place value. इन places पे जब हम कोई numbers लिखते हैं वो उसकी value बताता है. Now see, 9 कहाँ है? At ones place. 8 कहाँ है? Tens place. 4 is at 100 place. 1 is at 1000 place. तो अब हम अगर numbers को लिखना हो, how we will write according to the places? 9 को हम क्या लिखेंगे? 9. Tens पे है 8, so what we will write here? 80. What is the place value? I am telling you. क्या उसकी place value हो? यहाँ पे 4 कहाँ है? 100 place. We will write 400. 1 is at 1000 place, so it will be 1000. Got it? So these are place value of a number, right? You can see this is 1000, this is 400, this is 80, and this is 9. These are the place value, right? Now there are 3 terms which is important. So this is what? Places. These are what? Place value. किसी भी नंबर की, right? जब हम किसी प्लेस पे लिखते हैं तो उसकी वैल्यू भी होती है, राइट? हर एक प्लेस की जगह पे जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 8 नहीं होता, राइट, यहाँ भी 4 है, तो बट 4 यहाँ पे किस प्लेस में होता है? टेंस. ये क्या होता है? 40. ये भी 4 है, 4 का है 100 प्लेस पे, तो इसकी वैल्यू 400. दोनों की वैल्यू तो चेंज हो रही है, राइट? So this I want to tell you कि this is the changes, और हर एक डिजिट की अपनी वैल्यू है, बट अकॉर्डिंग टू प्लेस. तो प्लेस मैटर्स. प्लेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो बताता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी उस नंबर. अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है. अगर हम 4 किसी भी जगह पे लिखे, हमने लिख दिया, कहीं भी लिख दिया, बट हर जगह पे वैल्यू उसकी चेंज होगी. फॉर एग्जाम्पल, I'm not taking this number, I'm erasing this, okay? I'm showing you different number. For example, I'm taking this 4, 4, 4, 4. हर जगह 4 लिखा, बट सब जगह उसकी वैल्यू चेंज हो गई. क्यों? 4 जब वंस प्लेस पे तो क्या होगी उसकी वैल्यू? 4. टेंस प्लेस पे तो क्या होगी? 40. 100 प्लेस पे 400. 1000 प्लेस पे 4000. See, the number is same, digit is same, बट उसकी वैल्यू हर जगह पे चेंज है. किसकी वजह से? प्लेस की वजह से. Understood? Now getting my point? Okay. Now one more thing is there. ये तो हो गई place. We are talking about places. This is place value. ये हमारा place value हो गया. One more thing is there, that is periods. ठीक है, एक होता है period. बेसिकली वो आप क्लास 4-5 में पढ़ोगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो अभी उसकी नीड नहीं. तो मैंने कई बार ये चीज आपको एक्सप्लेन की है. वंस, टेंस, 100 कम्स इन सेम फैमिली. जो सेम फैमिली में आते हैं उनका पीरियड सेम होता है, दैट इज वन. वंस, टेंस, 100 वंस फैमिली में आते हैं तो उनका पीरियड क्या होगा? वंस. 1000, 10,000 सेम फैमिली में आते हैं तो उनका पीरियड होगा 1000. तो नो नीड टू वरी अबाउट, अभी नहीं पढ़ना है, राइट? ऑलराइट, सो ये अभी नहीं पढ़ना है आपको, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको पता होना चाहिए, राइट? So let's move further. Next page. In next page, now you can see here there is a diagram of an abacus. That's an abacus. ठीक है? What it is called? It's called abacus. अगर आपको इसके क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट,
इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, लाइक आपको बीट्स दी हुई है एंड यू हैव टू राइट द डिजिट, नंबर्स लिखने। क्या करना है, सिंपली यू नीड टू काउंट द abacus beads and you need to write the number. Now at the ones place, how many beads are there? 1. So what you will write here? 1. In tens place, how many beads are there? 1, 2, 3, 4. 4. So you will write here 4. In hundred place, there are 2. So we will write 2. अगर एक भी beads नहीं होती, what we write? 0. That is also very important because आप number form करते हो, right? So that is important. Don't forget to write down. Now, thousand place, how many beads are there? 1, 2, 3, 4, 5. So which number we have got? We got 5241. We got this number. मिला हमें ये नंबर? ऑलराइट। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, काउंट द बीड्स एंड राइट द आंसर, और इन केस कभी कभी ऐसे भी आते हैं कि आपको नंबर दिया, यू हैव टू ड्रॉ द बीड्स, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दिया है 2 4 3 1 दिया है एंड यू नीड टू ड्रॉ, तो आप क्या करोगे, विल सिंपली ड्रॉ लाइक दिस, विल मेक ones, tens, hundred and or is thousand, ठीक है। अब 2431 नंबर है, तो 1 पे 1 बीट, 3 टेंस पे 1 2, कैसे बनाओगे, जब भी बनाओगे आप बीट सटे रहते हैं, ध्यान दोगे, इट शुड बी ज्वाइंट। सी, आप ये डायग्राम देख रहे हो, इट्स ज्वाइंट, ऐसे ही ज्वाइंट रहते हैं। आप ऐसे नहीं बना सकते हो कि एक यहाँ बना एक यहाँ बना एक यहाँ बनाए, नॉट लाइक दिस, यू हैव टू ज्वाइन इट। Again, I'm showing you 2431. Okay? ऐसे ड्रॉ करोगे आप, बट यू नीड टू यूज स्केल, आई एम नॉट हैविंग, यू हैव टू यूज, दिस इज 1, दिस इज 10, दिस इज 100, दिस इज 1000। वंस प्लेस में 1 है, टेंस प्लेस है, इट शुड बी ज्वाइंट। 1000 में 100 में 4 1 2 4 and 1000 में 2. In this way you need to draw and then you need to color it. This is the way of solving everything. Now next topic is our write in words. हम कैसे words में किसी भी number को लिखें. For example, I'm taking the number 7265. ठीक है, ये number है and I'm taking one more 403. Okay, दो number I will be explaining. Two numbers 7265. अब जब भी हम किसी नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं, वी नीड टू सी कि कहाँ तक प्लेसेस हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू राइट दिस वंस, टेंस, 100 एंड 1000। क्लियर? 7 कहाँ है, 1000 प्लेसेस, सो वी ऑलवेज स्टार्ट विथ 1000, राइट, या जो भी लास्ट में हो, 100 है, 1000 है, वॉट एवर इट इज। सो यू विल राइट लाइक दिस 7, give some space and then write 1000, 7000, how many 100? 200, 200, then 6 is at 10th place, so क्या लिखेंगे, 60, then ones place 5. Got it? ऐसे आपको फॉर्म करना है, हमेशा 1000 से ones के साइड जाएंगे जब हम वर्ड्स में लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट इज 4030, कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वी विल राइट FOUR 4, then 1000, ओके। नेक्स्ट 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, सो वी विल जस्ट लीव दैट, देन 4003 कहाँ पे, टेंस प्लेस पे, सो दिस विल बी नाउ 30, एंड 30 की स्पेलिंग बहुत मिस्टेक्स होती है, एंड 40 आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। 30 THIRTY and 40 FORTY. FOURTY is wrong. Don't write. Correct one. Clear? Next, 4032. All right. So whatever I am teaching you, I will be giving you sheet. You will solve that. अपने notebook में आप solve करोगे. ठीक है? अभी हमें बस explain कर रही हूँ. You need to understand. So this is the way of writing the words. 4 is at 1000 place, so 4000 से start किया, 4000 100 place पे कुछ नहीं था, so just leave that. 3 is at 10 place, so 30, and then cut it. Now our next topic is write in figure. Figure means number formula. We have the question here first.
5 6 4 here, and second need to write in words. Okay, here we have to write in figure, so we will be having words. सब words में लिखा होगा. That is 7060. अगर ये क्वेश्चन है, we will make one column over here. Okay, तो हम लिखेंगे ones, tens, 100 and 1000. Right? Next. Next we have changing the number. I will not take the same, right? So this will be 6000. Okay, 6500. 5 is at 100 place. 500 FORTY 46. ठीक है, ये क्वेश्चन. नाउ वी नीड टू राइट इट डाउन. सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे. 7060 बोल रहा है, तो 7 कहाँ है? 1000 प्लेस. तो 1000 प्लेस में हमने लिख दिया 7. 7060 है, 100 प्लेस पे कुछ नहीं है. इफ देयर इज नथिंग वी राइट 0. नाउ 60 है, तो टेंस प्लेस पे 6 हो गया. वंस प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया, सो दिस विल बी ऑल्सो 0. जब कोई डिजिट नहीं होता, वहां पे कोई प्लेस की वैल्यू नहीं दी है, सो वी राइट 0. डोंट फॉरगेट. तो 76 नहीं लिखेंगे, अब वो 76 हो जाएगा. 7060. नेक्स्ट 6546. 6 is at 1000 place, so कहाँ लिखेंगे हम लोग? 1000 place पे. नेक्स्ट 5 is at 100 place, तो 100 place पे हो गया 5. 46 4, that means 4 is at 10th place and 6 is at 1's place, so we will write like this 6546. इस तरह से हमें लिखना है. ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं दी है, वी जस्ट राइट 0. सिंपली 0. पुट 0 देयर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग वन मोर. फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन होता 3000, सिर्फ 3000 है, क्या करोगे आप? 3 कौन से प्लेस पे? 1000. तो हमने 3 लिख दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं दिया, तो क्या करेंगे हम? पुट 0. गॉट इट? समझ में आया? ऑलराइट. Now let's proceed further. How to find out the place value? कैसे हम place value find out करते हैं किसी भी circle digit की या colored digit? Question can be of any way, like find out the place value of encircled digit, find out the place value of colored digit. किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. You have to find out the place value. Now here place value of 8 in this. अब 8 की हमें place value अगर बतानी है, तो क्या होगी? 8 कौन से प्लेस पे है? दिस इज 1, 10, 100, 1000. कौन से प्लेस पे है? 100 पे. तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 800. या क्या लिख सकते हैं? 800. हमने ये फाइंड आउट कर लिया, राइट? नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल. सेकेंड एग्जांपल, दिस इज फर्स्ट. प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 5, 6 to 8. फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है. अब हमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है. 5 कौन सी प्लेस पे है? 1, 10, 100, 1000, राइट? तो 5000 प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स इट इज 5000. आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो. ठीक है, मैं आपको ये मल्टीप्लाई करके शो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 8 में हम 100 प्लेस पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. 5000 प्लेस पे, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते, तो ये 5000 आता है. कैसे आता है? दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 5000. अगर वर्ड्स में लिखने ऐसे आप लिख सकते हो. ऑलराइट. So this is place value. समझ में आया? कोई confusion? I think there's nothing confusion, right? Place value simply हम ऐसे ही find out करते. Alright. Now moving further in expanded form. Expanded form या standard form. There are two types of form. ठीक है? We will discuss both. ठीक है? This is what standard form. This is what expanded form. किसी भी नंबर को जब हम शॉर्ट में लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म.
इन एक्सपेंडेड फॉर्म वी राइट द नंबर बाय शोइंग द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, हर एक नंबर की वैल्यू लिखते हैं, राइट। समझ में आया, यहाँ पे हम वैल्यू लिख रहे थे ना, जैसे किसी एक नंबर की लिख रहे हैं वैल्यू, प्लेस लिख रहे हैं, प्लेस वैल्यू, वैसे ही एक्सपेंडेड फॉर्म में हम सारे डिजिट्स के क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, right? See here, in expanded form we write the number by showing the value of each digit. Now see here, 7294 है, 7 का है 1000 तो 7000 plus, but when we write in expanded form, plus sign is must. This is very important. If you will not put the sign, then expanded form is not correct, वो cross गलत हो जाएगा। Next, 2 का है 100 place पे, so we will write 200, then 90 plus 90, 90 का है 90 is 90, ठीक, 4। तो दिस इज एक्सपैंडेड फॉर्म। किसी को हम जब एक्सपैंड करते हैं उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, हम प्लस का साइन लगाते हैं, दैट इज एक्सपैंडेड फॉर्म। अब इसी को जब हम शॉर्ट फॉर्म में प्लस करके लिख देंगे 7294, दिस इज शॉर्ट फॉर्म, yeah, this is the difference. Now let's do it. So I'm taking question 1, 4 5 6 2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देन वी विल डिस्कस स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। अब इसको हमें एक्सपैंड करना है, कैसे करेंगे, ठीक है, आई एम शोइंग यू। ऑल राइट, आई एम ड्रॉइंग वन लाइन, आई विल बी शोइंग यू टू क्वेश्चन, ठीक है, 4 2 7। एक मैं जीरो वाला क्वेश्चन करा रही हूँ, एक बिना जीरो, ठीक है, सो दैट डोंट गेट कंफ्यूज। बेसिकली आप जीरो में कंफ्यूज हो। नाउ I'm writing this also, ones, tens, 100,000. You also make it a habit कि आप ये heading में लिखो so that कभी mistake होगा ही नहीं, right? 4 कहाँ है, 1000 प्लेस, क्या लिखेंगे हम, 4000। कौन सा साइन लगाना है, प्लस या माइनस, प्लस, राइट। 5 कहाँ है, 100 प्लेस, सो वी विल राइट 500 प्लस। 6 इज एट विच प्लेस, 10, सो क्या लिखेंगे, C। I don't have space, so I can write over here. Plus 2 is at which place, ones, so simply प्लस का साइन मैंने हर जगह लगाया है, you can see that. Next, 4 का है 1000 प्लेस, क्या लिखेंगे, 4000 प्लस 0 का है 100 प्लेस पे, बट 0 को आपको 3 बार लिखने की नीड नहीं है, आप 3 बार की जगह आप एक ही बार लिख सकते हो, ठीक है। एंड इफ यू वांट यू कैन राइट 3 टाइम्स ऑल्सो, इट्स नथिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट 0 की वैल्यू 0 ही होती है, इसलिए इट्स बेटर टू राइट 1 टाइम, ओके। 0 हमने एक बार लिख दी। 3 कहाँ है, टेंस प्लेस पे, 3 0 30 प्लस 7 कहाँ है, वंस प्लेस पे, सो जस्ट 7, गॉट इट। 4000 प्लस 0 प्लस 30 प्लस 7 मिलके क्या बनेगा, 4030। इन द सेम वे 4560 प्लस 2 मिलके क्या बनेगा, 4502। तो दिस इज एक्सपैंडेड फॉर्म, जब हम किसी भी नंबर को एक्सपैंड करते हैं। नाउ आई एम टेकिंग 4 5 6, ये नंबर है, 4 की वैल्यू 4000, 5 की वैल्यू 500, 6 की वैल्यू 60, की वैल्यू 2। अब हम एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या करते हैं, जस्ट राइट इन दिस वे, राइट, हम प्लस का साइन लगाते जाते हैं एंड वी जस्ट राइट, यही है ना एक्सपैंडेड फॉर्म, उसकी प्लेस वैल्यू लिखते गए और प्लस का साइन लगा दिया। डिड यू अंडरस्टूड नाउ, यस, ऑलराइट। नाउ कमिंग टू द शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, I'm giving you one question. Here, 1000 plus 200 plus 9 लिखना है, and here we have 5000 plus 200 plus plus ये क्वेश्चन है। अब हमें इसका बस आंसर लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ 6 कहाँ है, 1000 प्लेस पे है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 6। देन 2 इज एट 100 प्लेस, तो 6 के बाद 5 कहाँ है, 5 is at which place, 10th place, 50 है, so 5, and then 9 is at 1st place, so we have written 6259. We got it? समझ में आया? You can see ones, tens, 100,000. Okay, I'm also writing here ones, tens, 100,000.
Now 5 कहाँ है? 1000 place. If दिया 5, 2 is at which place? 100. We have written 2 here. Now 10th place पे क्या दिया है? 0. ये भी हो सकता है क्वेश्चन में ये ना दिया एग्जाम में, डायरेक्ट +7. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. अगर 10th प्लेस पे कुछ नहीं दिया तो दैट मीन्स यू हैव टू पुट 0. अगर नहीं दिया होता है तो क्या करते हैं? 0 लगाते हैं. और नेक्स्ट 1st प्लेस पे क्या दिया है? 7. तो जस्ट राइट डाउन. मैंने वो आपको हटा के इसलिए बताया कि एग्जाम में हो सकता है 0 ना दिया हो और 0 दे भी सकता है. तो जिस तरह से भी क्वेश्चन आए यू हैव टू सॉल्व इट. ठीक है. Okay, let me erase this. Write it properly. +7. For example, यही दिया था. 10th place पे कुछ नहीं था, so we have written 0 over there. Did you understood everything? Right? ना समझ में आया? आज हमने क्या क्या पढ़ा? Place value. Let's revise once again. What we have studied? First, we have studied place value chart. Next, we have studied about abacus. Okay. Now, next we have studied write in words. How to write in words. Next, we have studied write in figures. Then what is place value? कैसे लिखते हैं place value? Expanded form we have studied and standard form also. This is expanded form and this is short form or standard form. This much we have studied. Now the rest of the things we will be studying in the next period, next class. All right. So that's all for today. So just practice this and I will be sending you one practice sheet. आप उसको solve करोगे. I will be making some questions regarding this. This you need to solve in your revision copy or practice copy wherever you want. All right. So till then, bye bye. Take care. Have a nice day, students.